یہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا، خاک صحرا پہ جمے یا کفل قاتل پہ جمے، خاک صحرا پہ جمے یا کفل قاتل پہ جمے، فرق انصاف پہ یہ پائے سلاسل پہ جمے، تیغ بیداد یا لاشے بسمل پہ جمے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا، ظلم کی بات ہی کیا، ظلم کی اوقات ہی کیا، ظلم بس ظلم ہے آغاز سے انجام تلک، ظلم پھر ظلم ہے آغاز سے انجام تلک، خون پھر خون ہے، سو شکلیں بدل سکتا ہے، ایسی شکلیں کہ مٹاؤ تو مٹ نہ سکیں، ایسے شعلے کہ دباؤ بجھاؤ تو بجھ نہ سکیں، ایسے نعرے کہ دباؤ تو دب نہ سکیں، سجدہ خالق کو بھی اور ابلیس سے یارانہ بھی، یہ بتا محشر میں کس سے عقیدت کی جزا مانگے گا۔ السلام علیکم، میں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں زین العابدین عباسی۔ اچھا مجھے بتائیں، آپ اس وقت دھرنے میں تھے، یہ کہا جا رہا تھا دھرنے میں ممی ڈیڈی برگر ٹائپ بچے ہیں، رانا ثناء اللہ نے یہ کہا تھا میں ان لوگوں کو گھروں سے باہر نہیں نکلنے دوں گا، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع فراہم کیا۔ دیکھیں جی، رانا ثناء اللہ یا مسلم لیگ نون یا جو پی ڈی ایم تھی، ان کا ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان کی جو اس وقت کی گورنمنٹ پارٹیز ہیں، ان کا یہ خیال تھا کہ یہ تحریکی لوگ تو ہیں نہیں، یہ تنظیمی لوگ ہیں نہیں، یہ عمران خان کا ایک فین کلب ہے جو یہاں پہ آئے گا، ہم اس کے اوپر شیلنگ کریں گے، ان کے اوپر ظلم کریں گے تو وہ واپس بھاگ جائیں گے، وہ گھروں سے باہر نہیں نکلیں گے۔ لیکن پاکستان کی جتنی بھی آج تک کے 75-77 سالہ تاریخ ہے، کسی سیاسی پارٹی نے کسی سیاسی پارٹی کے اوپر اتنا ظلم نہیں کیا جتنا مسلم لیگ نون اور ان کے حواریوں نے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں اور عوام کے اوپر ظلم کیا ہے۔ اور میں یہ جو ظلم کیا ہے، رانا ثناء اللہ جو مونچھوں کا تاؤ دے کے یہ باتیں کر رہا تھا، اس کو یہ میں پیغام دیتا ہوں کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا، خاک صحرا پہ جمے یا کفل قاتل پہ جمے، خاک صحرا پہ جمے یا کفل قاتل پہ جمے، فرق انصاف پہ یہ پائے سلاسل پہ جمے، تیغ بیداد یا لاشے بسمل پہ جمے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا، ظلم کی بات ہی کیا، ظلم کی اوقات ہی کیا، ظلم بس ظلم ہے آغاز سے انجام تلک، ظلم پھر ظلم ہے آغاز سے انجام تلک، خون پھر خون ہے، سو شکلیں بدل سکتا ہے، ایسی شکلیں کہ مٹاؤ تو مٹ نہ سکیں، ایسے شعلے کہ دباؤ بجھاؤ تو بجھ نہ سکیں، ایسے نعرے کہ دباؤ تو دب نہ سکیں۔ آپ اپنے ذہنوں سے، آپ اپنے دلوں سے یہ خیالات نکال لیجئے کہ آپ ظلم کریں گے، آپ خون بہائیں گے اور آپ اس ظلم کے نتیجے میں اس عوام کو روک لیں گے۔ میں نے جیسے کہا، ظلم کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، ظلم کی کوئی تاریخ نہیں ہوتی، ظلم صرف ظلم ہوتا ہے، فقط ظلم ہوتا ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو خون ہوتا ہے وہ جہاں پہ بھی جائے گا وہ جم جائے گا اور وہ اپنا نشان چھوڑ جائے گا۔ آپ نے جو ظلم پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پہ کیا، آپ نے جو ظلم پاکستان کی عوام کے اوپر کیا، میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے تاریخ میں اپنے آپ کو ابن یزید ثابت کر دیا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، پاکستان کی عوام نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ پاکستان کی عوام اب مزید ظلم کو برداشت نہیں کرے گی، اپنا خون بہا دے گی، لیکن تمہارے ظلم کو اب مزید برداشت نہیں کرے گی۔ اور یہ دیکھیں، یہ ایسی عجیب قسم کے ایسے فرعونی خیالات کے لوگ ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے لوگوں کو گھروں سے باہر نکلنے کے لیے گھروں کے اوپر چھاپے لگائے۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی، خدا کی قسم میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ایک گھر میں ایک تحریک انصاف کے رہنما کو گرفتار کریں گے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے پرچم لے کے باہر نکل آئے، انہوں نے کہا ہمیں گرفتار کرو۔ تمہارے ذہن میں یہ کس نے ڈالا ہے کہ یہ ممی ڈیڈی لوگ ہیں؟ یہ تو انقلاب کے لیے نکلی ہے قوم، یہ اب تمہارے ظلم کو، یہ تمہیں دیکھتے ہیں نا، تمہاری شکلیں دیکھتے ہیں نا، تمہاری مونچھیں دیکھتے ہیں یہ چمگادڑ جیسی، تمہاری
तुम्हारी शक्लों के ऊपर लिखी हुई है तुम्हारे करप्शन की दास्तान, तुम्हारी शक्लों पे लिखी हुई है तुम्हारे जुल्म की दास्तान, तुम्हारी शक्लों के ऊपर लिखी हुई है यजीद की तस्वीर। जब ये देखते हैं, ये कुड़ते हैं, कहते हैं ये कैसे हुक्मरान हमारे ऊपर आ गए। ये अब कौम निकल आई है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुनान खाली नहीं निकले, पूरी कौम निकल आई है। और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ये कौम अब दबने वाली नहीं है, रुकने वाली नहीं है। एक कदम पीछे अगर हट भी गई तो ये दोबारा तुम्हारे ऊपर झपटेगी और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अपना हक तुमसे लेके रहेगी। तुम लाख जुल्म करो, करते रहो, इंशाअल्लाह कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा मुझे बताएं, खान साहब ने 6 दिन का टाइम दिया, 3 दिन हो गए हैं, 3 दिन बाकी रह गए हैं, क्या समझते हैं दोबारा उस तरह आवाम निकलेगी? देखें जी, खान साहब को इस वक्त अवाम की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये अब हम अपने जहनों से सारे सियासतदान निकाल लें, खान इस वक्त सियासत करने आया हुआ ही नहीं है। खान को अवाम की ज़रूरत नहीं है, इस वक्त अवाम को खान की ज़रूरत है। अब ये जो खान साहब यहाँ से चले गए, खान साहब चूँकि क़यादत थी और क़यादत बाप का दर्जा रखती है, उससे जब ये देखा, उसने जब हालात देखे कि अभी खान पहुँचा नहीं है, डी चौक भर गया, ब्लू एरिया से आगे G9 तक, 9th एवेन्यू तक लोग भर गए, हम वहाँ पे थे पूरा दिन। ये पूरा दिन जुल्म करते रहे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जियालों के ऊपर जनरल ज़िया-उल हक ने इतना जुल्म नहीं किया था जितना तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर इन्होंने जुल्म किया। उसके बावजूद लोगों ने आखिरी कंटेनर तक हटा दिया, इन्होंने एक्सपायर शेलिंग की, इन्होंने लाइव बुलेट्स चलाई। लोग अपनी जानें देने के लिए, हमारे लोग शहीद हो गए, हमारे नौजवान शहीद हो गए, लेकिन कौम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थी। खान ने उस वक्त जब देखा कि ये साजिश कर रहे हैं और कुछ साजिशी अनासर जो हैं यहाँ पे इंतशार फैलाना चाह रहे हैं, खान पीछे हटा और कौम ने खान से ये गुजारिश की कि खान साहब आप वापस आएँ। आप क्यों चले गए? कौम यहाँ से नहीं जानना चाहती थी, बिल्कुल भी नहीं जानना चाहती थी। अब खान साहब वापस आएंगे, ये कौम उससे भी ज़्यादा उनके साथ खड़ी होगी। और मुझे उम्मीद है कि खान साहब ने जो कहा है कि मैं तैयारी के साथ वापस आऊँगा, इस दफ़ा वो लोगों को टास्क दे के आएंगे, तैयारी के साथ आएंगे। खान साहब ने भी सोचा कि ये चले कुछ ना कुछ सियासी तो होंगे, ये लोगों के ऊपर जुल्म नहीं करेंगे, लेकिन उनको क्या पता था कि हिटलर की सोच के लोग हैं। इन्होंने लोगों को इस तरह मारा, इस तरह मारा, कभी किसी डिक्टेटर ने इस तरह लोगों को नहीं मारा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा किया, तहरीकों में जब तक खून नहीं लगता, तहरीकों में जब तक जुल्म नहीं होता, जब तक कारकुन तहरीकों में जुल्म सहता नहीं है, जब तक वो तहरीकें नहीं बनती, तुमने हमारी इस तहरीक को वाकई में तहरीक बना दी है। तुम्हारा बाप भी अब इस तहरीक को नहीं रोक सकेगा। और तुम्हारा बाप तुम जानते हो अमेरिका है, अमेरिका भी क्या पूरी दुनिया की ताकतें आ जाए, हमारी तहरीक को नहीं रोक सकती। अच्छा मुझे बताएं, क्या वजह समझते हैं क्यों खान साहब ने वापस आने का फैसला किया? देखें, जो मैंने ज़ाती तौर पे ऑब्ज़र्व किया, मैं आपको बताऊं कि हम यहाँ पे कोई मरकज़ी क़यादत हमारे साथ नहीं थी, कुछ भी नहीं था। अवाम निकल आई, जम्मे गफ़ीर अवाम का निकल आया। हालांकि इन्होंने जगह जगह पे रुकावटें लगाई, इन्होंने जगह जगह पे लोगों को तंग किया, घरों पे छापे लगाए। जो बेइज्जती वाला हरबा ये इस्तेमाल कर सकते थे, ये आखिरी हद तक गए। जब वो आखिरी हद तक जाने में नाकाम हो गए और इन्होंने अपने दोनों हाथ खड़े करके फ़ौज को तलब कर लिया, अपनी नाकामी साबित कर ली। वो जिसने कहा था मैं अपने बाप का नहीं हुई, यहाँ पे लोग आ जाएं, वो जब साबित हो गया कि नहीं है अपने बाप का, तो उसके बाद जब उन्होंने देखा खान साहब अभी पहुँचे भी नहीं हैं, लोग पहुँच गए, लोगों के अंदर गुस्सा है, गम के साथ गुस्सा है, फिर उनके जज्बात हैं, लोग यहाँ पे इनकलाब खून देना चाह रहे हैं। जब खान साहब ने ये देखा कि ये लोग जाना ही नहीं चाह रहे, वहाँ पे लोग खुदा की कसम जिन्होंने जाना था वो फैज़ाबाद से पहले चले गए थे। पूरे दिन शेलिंग खाने के बाद, इनके लाठियां खाने के बाद, जुल्म बर्दाश्त करने के बाद, कोई ऐसा नौजवान नहीं था, कोई ऐसा बूढ़ा नहीं था, कोई ऐसी ख़वातीन नहीं थी जो अपने घरों को जाना चाह रही थी। वो जान देना चाह रहे थे, वो कह रहे थे आज बस फैसला हो जाए। जैसे भी हमारी जानें लगती हैं, खून लगता है, बस आज फैसला हो के रहे। खान साहब को जब ये पता चला कि अवाम इतने गुस्से में है और ये जो साजिशी लोग हैं ये अवाम के ऊपर जुल्म करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, तो खान साहब ने उस वक्त ये फ़ैसला रिवर्स का इसलिए किया कि कहीं ऐसा ना हो कि मुल्क खाना जंगी का शिकार हो जाए। खान साहब ने मुदब्बिराना फ़ैसला किया है। मैं समझता हूँ कि एक बड़े लीडर होने का फ़ैसला किया है। उन्होंने इसलिए ये फ़ैसला किया है क्योंकि उन्हें वतन अज़ीज़ सबसे पहले अज़ीज़ है। ये तो चोर उचक्के हैं, इन्होंने यहाँ से लूटना है, फिर यहाँ से दफ़ा हो जाना है। ये इस कौम ने यहीं पे रहना है, हमने यहीं पे रहना है। हमारी ज़िंदगियाँ, हमारे आबा व अजदाद की कब्रें, हमारी तारीख़ है, हमारी अब खून इस मुल्क के साथ लगा हुआ है। हम तो इस मुल्क को नहीं छोड़ सकते ना, वो तो इम्पोर्टेड है, उन्होंने चले जाना है, जुल्म करना है, मारना है, भाग जाना है। खान साहब ने भी यहीं रहना है, इस कौम ने भी यहीं रहना है। उन्होंने ये फ़ैसला जो किया है ये बड़ा दूरअंदेश फ़ैसला है, फोरकास्टिंग फ़ैसला है। और इंशाल्लाह खान साहब वापस आएंगे, उनके साथ कौम ऐसे ही निकलेगी। और मुझे उम्मीद है कि पार्टी की क़यादत भी होश का नाखून लेगी और उनके साथ निकलेगी। अच्छा मुझे ये बताएं, ये कहा जा रहा है आज की खबरों में कि 2 पाकिस्तानी वफ़द ने इसराइल में जाके मुलाकात की है इसराइली सदर से, तो उसकी तस्दीक भी की गई है, इसराइली सदर ने उसकी तस्दीक की है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखें जी, सबसे पहले तो मैं ये सवाल करूँगा, कौम से नहीं करूँगा, उस मौलवी से करूँगा जो वो
येलो सा एक दुपट्टा सा लपेट के आ जाता है और कहता है मेरी पगड़ी है, वो मौलाना फजल रहमान, जिसका बाप पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शामिल नहीं था और आज वो भी पाकिस्तान को बचाने के गुनाह में शामिल नहीं होना चाह रहा और ये अगयार के साथ खड़ा हुआ है। मैं उस मौलाना फजल रहमान से पूछता हूँ कि तुम मुझे ये बताओ कि सजदा खालिक को भी और इबलीस से याराना भी, ये बता मैशर में किससे अकीदत की जज़ा मांगेगा? तू आज मुझे मौलाना फजल रहमान तुम बताओ कि तुम तो कहते थे यहूदी एजेंट इमरान खान है, तुम इमरान खान को कहते थे कि इसने को इसराइल ने लॉन्च किया है, लेकिन हमारे कायद इमरान खान ने पूरी उम्मत मुस्लिमा का सर फ़ख्र से बुलंद किया। इसराइली जब वज़ीर आज़म आया, तकरीबन मेरे ख्याल में यूएन था या किसी हाई लेवल की इजलास में, जब इसराइली वज़ीर आज़म आया, हमारा खान उठ के खड़ा तक नहीं हुआ। उसने अपने एक्शन से ये साबित किया कि मैं मोमिन हूँ और मैं तुम्हारी इस पूरी दुनिया में जो तुमने अपने पंजे गाड़े हुए मैं इससे मुतासिर नहीं हूँ। उसने तो अपने एक्शन से साबित किया, उसके सामने खड़े होके कहा कि वी विल फाइट फॉर ला इलाहा इल्लल्लाह। मुझे आज ये बताओ, तुम्हारी वजह से, तुम्हारे दहशत गर्दों की वजह से जो आए दिन इस्लामाबाद पे चढ़ दौड़ते थे, उसकी वजह से, उन मुदारिस के लड़कों की वजह से जिनको तुम इस्तेमाल करके, बेचारों को पता ही नहीं है कि वो कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, उनको इस्तेमाल करके तुमने इस इम्पोर्टेड हुकूमत को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया। आज इस पाकिस्तानी हुकूमत का वफद जाके इसराइल को मिल रहा है और उसी एजेंडे के तहत मिल रहा है जिस एजेंडे के तहत ये इम्पोर्टेड हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत की गई थी। मेरा सवाल तुम्हें है कि अगर तुम वाकई में अल्लाह पाक को मानने वाले हो तो फिर कल पार्लियामेंट की इस इजलास में खड़े होके इस हुकूमत से अल्लाह बगावत करो और फिर मैदान में निकल आओ और कहो मैं इमरान खान के साथ हूँ। इसराइल को 3.5 साल इमरान खान ने नहीं एक्सेप्ट किया, अभी 3.5 माह भी नहीं हुए, अभी 1-2 माह का अरसा नहीं गुजरा, ये अपने नाजायज़ बाप के पास पहुँच गए, इन्होंने अपना वफद। हमारी एक बात याद रखिए, ये कौम 2 चीज़ों के ऊपर कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करती। एक ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये कौम कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करती, और दूसरा जैसा कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें पहले दिन कहा था कि हम इसराइल को नहीं मानेंगे, इसराइल के ऊपर ये कौम कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी। तुम अपनी कब्रें खोदना चाहते हो, सियासी कब्रें तुमने खोद दी हैं, लेकिन तुम, मुझे लगता है, अब हकीकी कब्रें खोदना चाहते हो। इस पाकिस्तान को तुम दहशतगर्दी की तरफ धकेल रहे हो। तुम आईनी, यहाँ पे हमारे न्यूट्रल्स ने, हमारे बाकियों ने, कोई भी नहीं रहा यहाँ पे, अदलिया ने, सब ने मिलकर तुमने जो पाकिस्तान का हाल करना था तुमने कर दिया है। लेकिन खुदा के लिए अब इस पाकिस्तान को इस दहशतगर्दी की तरफ मत धकेलो कि पाकिस्तान के लोगों के मजहबी जज्बात को, उनको ऐसा मत करो कि उनके मजहबी जज्बात जाग जाएं। इज़राइल के साथ बैठना हमारे मज़हब की, हमारे इस्लाम की, हमारे दीन की, हमारे अकायद की तौहीन है। हम इसराइल को किसी सूरत भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छा, मुझे बताएं, वो तजर्बाती टीम कहाँ है जो कहती थी हमें 3 माह दें, हम मुल्क को बेहतर कर लेंगे, हमें आने दिया जाए, हम मुल्क को बेहतर करेंगे, महंगाई मकाओ मार्च किया था, क्या कहना चाहेंगे उन बारे में? देखें, जो ये टीम ये कहना चाह रही थी कि हम बड़े ही कोई तजर्बाकार हैं और ये कौम ने उनके तजर्बे देखे हुए हैं, ये सिर्फ मीडिया के कैमरों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अपने प्लांटेड किस्म के साफ़ी सामने बिठा के इस तरह की बातें करते हैं, वरना पब्लिकली ये बातें वो कहाँ कर सकते हैं कि हमारी तजर्बाती। उनका तजर्बा कौम ने नहीं देखा हुआ, उनका तजर्बा कौम ने देखा हुआ है। 30 साल तजर्बा है उनका। पता है किस चीज़ का तजर्बा है? करप्शन का, मनी लॉन्ड्रिंग का, बेईमानी का, चलते भट्ठों में लोगों को डालने का, चलती रेलों में लोगों के साथ रेप करवाने का। पार्लियामेंट से बाज़ार हुस्न तक की बुक पढ़ लें, आप देख लेंगे कि वहाँ पे इनके क्या कारनामे हैं, इनके तजर्बे माशाल्लाह कैसे हैं। ये इनके तजर्बे जो हैं, ये इन चीज़ों में तजर्बे हैं। वो तजर्बे हमें पता है। तुमने 30 साल इस मुल्क के ऊपर तजर्बे करके आज मुल्क को इस जगह पे धकेल दिया है कि आज मुल्क बेचारा लड़खड़ा रहा है। IMF के आगे मुल्क मजबूर हो चुका है। ये तुम्हारे तजर्बों की बदौलत था। और फिर उसके बाद अल्लाह पाक की ज़ात है जी, अल्लाह पाक जिसको चाहे एक्सपोज करे, अल्लाह पाक की ज़ात है जिसको चाहे इज़्ज़त दे, ज़िल्लत दे। आज अल्लाह पाक की ज़ात ने उनको ज़िल्लत देनी थी, वो दोबारा ज़लील होने के लिए हुकूमत में आ गए। तजर्बे और पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे। 3.5 साल इमरान खान ने जिस तरह इस माशी बुरान को कोरोना के बायस रोके रखा, पूरी दुनिया में महंगाई हुई लेकिन हमारे इमरान खान ने इस महंगाई को रोके रखा। ये 4.5 हफ्तों में एक्सपोज होकर रह गए। इनसे संभाला जा रहा कुछ भी। इनकी मरियम कुछ कर रही है, इनकी दूसरी मरियम कुछ कर रही है, बिलावल कुछ कर रहा है, मौलवी फजल रहमान कुछ कर रहा है। अब अपनी अपनी
منسٹریاں بانٹ لی ہیں. مولانا فضل الرحمان نے وہ NHA کی منسٹری لے لیا ہے, وہ وہاں پہ لگا ہوا ہے کرپشن کرنے. پیپلز پارٹی والوں نے اپنی منسٹریاں لے لی ہیں, نون والوں نے اپنی. آپ یہ ان کا تجربہ جو ہے یہ اس کو یوٹیلائز کریں گے اور اپنے تجربے سے سارے لوٹیں گے, گھسوٹیں گے, اور پاکستان کو لوٹ گھسیٹنے کے بعد پھر دوبارہ باہر نکل جائیں گے, اور ہمارے ادارے پھر نیوٹرل ہو کے بیٹھے ہوئے دیکھتے رہیں گے. میں قربان جاؤں آپ کے نیوٹرل ہونے پہ, آپ صدقے جاؤں آپ کے اوپر. خدا کے لیے اس قوم کے اوپر, اس ملک کے اوپر, اس عوام کے اوپر تھوڑا سا رحم کھا لیجئے.